हेलो बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 2 क्वांटम नंबर्स। नाउ क्वांटम नंबर, पहले तो 4 क्वांटम नंबर आपको पता होने चाहिए। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज योर एजिमुथल क्वांटम नंबर, m इज योर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ is spin quantum number. Now principal quantum number n tells you the shell to which electron belongs. Azimuthal quantum number tells you the subshell to which electron belongs. M magnetic quantum number is, it tells you the orbital to which electron belongs. Then spin quantum number tells you the spin of electron, spin of electron. Now we'll understand this spin quantum number later in detail, but what you must know before this lecture is values of this quantum number. Now principal quantum number have values 1, 2 and so on. Now this subshell, that is L, depends on this n value and it comes from 0, it counts to n minus 1, 0 to n minus 1. Now M, azimuthal magnetic quantum number, is tells you orbital and its value depend on this azimuthal quantum number and its value ranges from minus L to plus L through 0. ठीक है, माइनस एल से लेके प्लस एल थ्रू जीरो. एंड दिस स्पिन क्वांटम नंबर हैव ओनली 2 वैल्यूज. इफ इट इज प्लस हाफ can or it is minus half. It can be plus half or it can be what, minus half. Now the thing is, if it is third shell that we are talking about, third shell, then you have to remember third shell means we are talking about atom, nucleus, first shell, second shell and third shell. This third shell contains what? Now you must know from previous lecture that first shell contains what? S subshell only. Second shell contains what? S and P. Third shell will contain S, P and D. How it contains S, P, D, that you have to remember. If it is n is equal to 3, then azimuthal quantum number value depend on this principal quantum number. Then this azimuthal quantum number will start from 0. Then it will value will be 1. Then value will be what? 2. Then 0, 1, 2 are the values of what? Your azimuthal quantum number. As you remember this table, this S, P, D, F, these are the subshell. These are what? Subshell. And this subshell will be dependent on value of L. If it is value of L is 0, then you are talking about S subshell. If it is 1, then we are talking about P subshell. If it is 2, then we are talking about D subshell. And if it is 3, then we are talking about F subshell. Now how many subshell is there in this third shell? तो सबशेल कौन सी है? S है, फिर 1 के लिए P लिखना पड़ेगा, 2 के लिए D लिखना पड़ेगा. नाउ इंडिविजुअल आपको क्या मिल गया? तो शेल पता है अब, ठीक. फिर सबशेल कौन सी है उस शेल में, वो भी पता है. फिर हम उस सबशेल में क्या निकालेंगे? ऑर्बिटल निकालेंगे. अब ऑर्बिटल निकालेंगे तो क्वांटम नंबर की गेम से आपको समझ गया कि ऑर्बिटल विल बी गिवन बाय दिस m, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. नाउ 0 के लिए जब हम निकाल रहे हैं, 0 के लिए ये देखो, 0 के लिए, 1 के लिए और 2 के लिए निकालेंगे. तो 0 के लिए m की वैल्यू -0 से +0 थ्रू 0. ऐसा तो कुछ होता नहीं, तो इसलिए क्या हुआ, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया? 0 वैल्यू आ गई. तो 0 वैल्यू आ गई मतलब एक ऑर्बिटल आई. तो मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 मतलब क्या? एक ऑर्बिटल लिखेंगे, ठीक है. तो 0 मतलब आप समझ लेना, इट इज़ व्हाट? एक ऑर्बिटल. नाउ m की वैल्यू l पे डिपेंड रहती है, तो m की वैल्यू विल बी व्हाट? -1 0 +1. वाई इट इज़ -1 0 +1? बिकॉज l की वैल्यू अगर 1 है तो -1 से लेके +1 करना है थ्रू 0. अब 2 के वैल्यू क्या आएंगे? तो आपको पता होना चाहिए -2, -1, 0, +1 और +2. हाँ या ना बोल दो, ठीक है. अब यहाँ पे कितने वैल्यूज़ टोटल बने? तो टोटल वैल्यूज़ बने आपके पास, सिंपल समझ लो, टोटल वैल्यूज़ बने 5 वैल्यूज़, ठीक है. अब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने आए थर्ड शेल में, ठीक है. तो मैं देखता हूँ यहाँ पे थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल आए. तो ये एक बॉक्स आया, मतलब एक ऑर्बिटल, 0 मतलब ये 3 और ये 5, तो 9 ऑर्बिटल आपके पास आए, ठीक है. 9 कैसे आया? नंबर समझ के 9 कैसे आया? तो एक 0 का ये बॉक्स, फिर 3 बॉक्स, 4 हो गए और 5, मतलब क्या हो गए? 9 ऑर्बिटल्स. तो आपको समझना पड़ेगा शेल नंबर 3 में
3 सबशेल और ईच सबशेल में ऑर्बिटल। तो ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा अगर आगे बढ़ सकते हो कॉन्सेप्चुअली, तो n इज इक्वल टू 4 का डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाओ। n इज इक्वल टू 4 का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? तो l की वैल्यू क्या क्या आएंगे बताओ? 0 आएगा, 0 तो आता ही है हमेशा, ठीक है। 1 आएगा, फिर 2 आएगा। आपको कहाँ रोकना है? n-1 को रोकना है। n-1 क्या वैल्यू होगा? 3 वैल्यू होगा, तो यहाँ पे 3 भी आया। तो कौन सी सबशेल है? शेल नंबर 4 में कौन सी सबशेल है बताओ जल्दी से? S है, फिर P है, फिर D है और फिर क्या है? F है। नाउ सबशेल तो मिल गई। अब ईच सबशेल में ऑर्बिटल आपको पता है, S में पहले से पता था। S के लिए वैल्यू क्या आती है? 0 आती है हमेशा, तो एक ऑर्बिटल प्रेजेंट है किस सबशेल में? S सबशेल में। P सबशेल में -1, 0 और +1, मतलब 3 ऑर्बिटल प्रेजेंट है। और D सबशेल में कौन सी ऑर्बिटल प्रेजेंट है? -2, -1, 0, +1 और +2, ये ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है। और थर्ड में कौन सी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगी? तो -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, दीज आर द ऑर्बिटल्स। नाउ अगर ये गेम पूरा समझ गए तो बताओ नंबर ऑफ ऑर्बिटल टोटल 4th शेल में कितने आए? तो आपको टोटल करते आनी चाहिए। कितने वैल्यूज थे? यहाँ पे 1 वैल्यू थी, यहाँ पे 3 वैल्यू थे, यहाँ पे 5 वैल्यू थे, यहाँ पे 7 वैल्यू है। तो 16 ऑर्बिटल आपके टोटल है, किसमें? तो 4th शेल में। अब मैं पूरा डिस्ट्रीब्यूशन लिख रहा हूँ, तो आप हाँ या ना बोलते जाओ सिर्फ, ठीक है। तो देखो, अगर मैं फर्स्ट शेल की बात करूँ n इज इक्वल टू 1 में, तो कौन सी सबशेल होती है? उसमें सिर्फ S होती है, ठीक है। तो S सबशेल, सिर्फ S सबशेल, उसके बाद उसमें कितने ऑर्बिटल? 1 ऑर्बिटल, ठीक है। अब n इज इक्वल टू 2 की बात करें तो बता दो क्या हुआ? P सबशेल, नहीं पहले तो S सबशेल और P सबशेल, और टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ कितने आए? S में 1 होता है, P में 3 होता है, तो क्या हुआ? 4 ऑर्बिटल टोटल आए, ठीक है। उसके बाद n इज इक्वल टू 3 में, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 में S आया, P आया और D आया, ठीक है। तो कितने ऑर्बिटल उसमें प्रेजेंट है? देखो, S में 1 होता है, P में 3, D में 5, मतलब कितने आ गए टोटल? 9 ऑर्बिटल, ठीक है। अब उसके बाद n इज इक्वल टू 4, S आएगा, P आएगा, D आएगा और F आएगा। तो यहाँ पे कितने आ गए बताओ? तो यहाँ पे आपने अभी निकाला 16 ऑर्बिटल आए। नाउ अब आपको थोड़ा सा और एक चीज़ याद रखनी है। ये सारा गेम होने के बाद, ये थोड़ा रेड में लिखता हूँ, बड़ा लिखता हूँ, बता दो ये समझा कि नहीं। ईच ऑर्बिटल कैन accommodate ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। हर एक ऑर्बिटल सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है? 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकती है, ठीक है। अब ये अगर बात को अच्छे से याद रखें, तो अब देखो एटम का पिक्चर आपके सामने क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्बिटल दैट इज n इज इक्वल टू 1, जिसको हम K शेल बोलेंगे, उसमें कौन सी सबशेल आती है बताओ? सिर्फ S सबशेल आती है। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ उसमें कितने आएगी? तो 1 ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। ये गेम इतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है, ठीक है। अब सेकंड शेल की बात करो। सेकंड के लिए n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी, जिसको हम L शेल भी बोलेंगे। अब उसमें कौन से सबशेल आएंगे? S आएगा और P आएगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिटल बोल दो उसमें कितने आए? तो 3 और 1, 4 ऑर्बिटल आए, 4 ऑर्बिटल। उसके बाद थर्ड शेल का डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। n इज इक्वल टू 3, उसमें क्या आएगा? S, अब उसको क्या बोलेंगे? KLM, M बोलेंगे। M मतलब ये शेल हुई, KLM इज व्हाट? शेल। तो शेल मतलब ये n इज इक्वल टू 1 बोला तो K ही होता है, n इज इक्वल टू 2 बोला तो L ही होता है, और n इज इक्वल टू 3 बोला तो M ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे S, P और D 3 आपके पास सब शेल आई। तो ऑर्बिटल कितने आए? तो टोटल 9 ऑर्बिटल आए, हाँ या ना बोल दो। उसके बाद फोर्थ शेल, जिसके लास्ट स्टडी करना है हमें, फोर्थ शेल, तो n इज इक्वल टू क्या आएगा? 4 आएगा। तो उसकी KLMN, तो उसकी शेल का नंबर क्या होगा? n होगा, शेल का नंबर n होगा। और उसके बाद उसमें सबशेल कौन सी आएगी? तो बताओ, सबशेल स्टार्ट विथ S,
पी डी और एफ सब शेल आएगी और उसमें टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल बताओ कितने आएंगे, 18 ऑर्बिटल आएंगे, हाँ या ना बताओ। पूरा क्वांटम नंबर का गेम इसी में पूरा सिमटा हुआ। ठीक है, अब मुझे बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑर्बिट कैन कंटेन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिट कैन कंटेन। तो ये बताओ मैंने ऊपर क्या लिखा है, ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट ओनली व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे एक ऑर्बिटल है फर्स्ट शेल में, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकता है, तो यू कैन अकोमोडेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट शेल, you can accommodate only 8 electron in second shell, you can accommodate 18 electron in third shell, you can accommodate 32 electrons in fourth shell. तो 2, 8, 18 and 32 is what maximum capacity that orbit can contain, इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी। अब इसके लिए एक फॉर्मूला भी बताते हैं लोग, क्या बताते हैं, 2n का स्क्वायर कर देने का। क्या कर देने का, 2n का स्क्वायर। तो सपोज n इज इक्वल टू 1 के लिए निकालना है, तो n की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। n इज इक्वल टू 2 डाला तो 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 4 आ गया, 4 इंटू 2 कितना आ गया, 8 आ गया। फिर n इज इक्वल टू 3 डाला तो 3 का स्क्वायर 9 आ गया, 9 इंटू 2 18 आ गया। फिर n का 4 आया तो 4 इंटू 2 क्या हो गया, 4 स्क्वायर क्या हो गया, 16 हो गया, 16 इंटू 2 32 हो गया। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ तक समझ गया ये पूरा क्वांटम नंबर का गेम, तो आपको सिर्फ याद रखना है कुछ फॉर्मूलाज। ठीक है, अब मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट ऑर्बिट कैन कंटेन, ठीक है, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, 2n का स्क्वायर। सो फर्स्ट ऑर्बिट कैन कंटेन ओनली व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड ऑर्बिट कैन कंटेन व्हाट, 8 इलेक्ट्रॉन्स अभी निकाला हमने। थर्ड ऑर्बिट कैन कंटेन व्हाट, 16 इलेक्ट्रॉन्स, and fourth orbit can contain what, 32 electrons. This will never change anyhow in chemistry. Chemistry is pure science, तो pure science में कुछ चीज़ें बदलती नहीं है, तो ये पक्का याद रखो। ये हुआ आपका मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन ऑर्बिट कैन कंटेन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सबशेल कैन कंटेन। ठीक है, तो सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो आपको सिंपल याद रखना है, इफ़ इट इज़ एस सबशेल मतलब क्या, आपके पास सबशेल कितनी होती है, तो सबशेल इतनी होती है, एस पी डी और एफ होती है। तो आपको याद रखना है एस के लिए एल की वैल्यू बताओ। एल मतलब क्या, आपका प्रिंसिपल एजोमिथल क्वांटम नंबर। एजोमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू एस के लिए 0। देखो यहाँ पे टेबल लिखा है, टेबल से आपको समझ जाएगा, एसपीडीएफ का टेबल। देखो एसपीडीएफ का टेबल है, एल की वैल्यू 0 रहा तो एस होता है, पी रहा तो 1 होता है, डी रहा तो 2 होता है, एफ रहा तो 3 होता है। ठीक है, नाउ द थिंग इज कि आपको अगर सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं ये अगर पूछा, तो एस में 0, तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है 2l+1। ठीक है, 2l+1 का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 2 इंटू एल, एल की वैल्यू क्या है 0 और +1 मतलब क्या हुआ, तो ओनली 2 इंटू 2l+1 ये फॉर्मूला अप्लाई करना। तो बता दो एल की वैल्यू 0 डाली तो 2 इंटू 0 0 +1 1 हो गया और 1 इंटू 2 2 हो गया। तो एस ऑर्बिटल कैन मैक्सिमम कंटेन व्हाट, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब पी के लिए बोलो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एल की वैल्यू 1 हुई, फॉर्मूला सेट है आपके पास, क्या है 2 इंटू 2l+1, तो 2 इंटू 2 4 +1 5 इंटू 2। ओके, ये कुछ गलत हो गया, 1 तो 2 इंटू 1 1, सॉरी 2 इंटू 1 1 नहीं, 2 इंटू 1 2 +1 3, 3 इंटू 2 6, तो मैक्सिमम इट इज़ व्हाट 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो फार्मूला सेटिस्फाई करो सिर्फ। 2 डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, तो ये बताओ 2 में एल की वैल्यू 2 डाल के दिखाओ इस फार्मूला में, तो 2 इंटू 2 4 +1 5 इंटू 2 कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, 10 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी मैक्सिमम अकोमोडेटेड इनटू व्हाट, डी ऑर्बिटल। और एफ के लिए बताओ, एफ के लिए क्या होगा, वैल्यू 3 होगा, तो 14 इलेक्ट्रॉन्स यू कैन अकोमोडेट इन दिस एफ ऑर्बिटल। तो दिस मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन सबशेल कैन कंटेन। तो खुद को कन्विंस करो इस बात के लिए। अब बढ़ते हैं एक चीज़ जो आपको इस पूरे लेसन में पता होनी चाहिए, जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक्चुअली ऐसे ही बोला मैंने, सिंपल बात है, ये सारा क्वांटम नंबर हम क्यों पढ़ रहे थे, तो हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते आना चाहिए।
नाउ इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन विल बी रिप्रेजेंटेड, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट होता है N, L और X, ठीक है। याद रहेगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे रिप्रेजेंट होता है, N, L और X। अब यहाँ पे N आपका क्या है, तो N इज़ नंबर, शेल नंबर, N क्या है तो शेल नंबर है। L इज़ योर सबशेल, सबशेल कौन सी होती है बता दो, सबशेल कौन सी होती है, तो सबशेल S, P, D, F होती है, ठीक है। और X इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, X इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नाउ द थिंग इज़ कि आपके पास NLX के फॉर्मेट में आपके पास ये कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है, ठीक है। अब मुझे बता दो, ऊपर वाला पहले कवर कर लेते हैं। अब बताओ कि ये डिस्ट्रीब्यूशन था टोटल, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। उसके बाद हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा n इज इक्वल टू 3 के लिए कैसा होता है, n इज इक्वल टू 4 के लिए कैसा होता है। उसके बाद ईच ऑर्बिटल कैन कंटेन अकोमोडेट व्हाटएवर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑर्बिटल रही तो उसमें एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। 4 ऑर्बिटल में 2 मतलब 8 आ गए, 9 में 18 और 18 में 32 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड। नाउ दिस 2n स्क्वायर का फॉर्मूला आपने यूज़ किया, तो यहाँ पे मैंने 2n स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ किया। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड शेल में, ऑर्बिट शेल सेम ही होता है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड में 8, थर्ड में 16, फोर्थ में 32। मैक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट सब शेल कैन कंटेन, तो सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं उसके लिए फॉर्मूला दिया। फिर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय N, L और X, तो शेल, सब शेल और व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहा हूँ, ठीक है। एक ऐसे ही एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल है कि 2s3। बच्चों ये पूरा गलत है, क्यों गलत है, तो आपको गलती मिल गई तो आपको समझ जाएगा सब कुछ। 2s3 ऐसे लिखा मैंने। अब देखो 2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू s आ सकती है क्या, तो बिल्कुल आ सकती है। क्यों, तो 2 है तो l के कितने वैल्यूज आएंगे बताओ, l के कितने वैल्यू आएंगे, 0 और 1 आएगा। तो 0 में तो s आ गई आपके पास, तो 1 का तो कोई सवाल नहीं, तो s आ सकता है। तो यहाँ तक तो सब कुछ करेक्ट था, 2l यहाँ पर तक करेक्ट था। लेकिन बताओ l अगर s है मतलब क्या, l की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 0 आ गई, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, तो m की वैल्यू 0 आएगी। 0 मतलब कितने ऑर्बिटल, एक ही ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो यहाँ पे 3 लिखा है, तो ये सरासर क्या है, गलत है। समझ गए बात को। तो आपको यहाँ पे भी पता है, देखो s ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन बैठ सकते हैं। p ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने, तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 से ज़्यादा नहीं पॉसिबल। d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन, 10 से ज़्यादा नहीं पॉसिबल। f ऑर्बिटल में 14 इलेक्ट्रॉन, उससे ज़्यादा नहीं पॉसिबल। नाउ द थिंग इज कि अगला लिखता हूँ, अगले इसमें गलती है या नहीं है बताओ। अगर मैंने लिखा 2s1, तो दिस कैन ईजिली बी पॉसिबल। क्यों, तो देखो n इज इक्वल टू 2 है, L इज इक्वल टू 0 है, पॉसिबल है, और X मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो L में 0 है मतलब एक ऑर्बिटल है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं कंफ्यूज नहीं करता, आपको सिर्फ क्या रखना है याद, N, L और X याद रखना है। मतलब N इज इक्वल टू शेल, L इज इक्वल टू सब शेल और X इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन से, इलेक्ट्रॉन ये क्वांटम नंबर के प्रैक्टिस से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है वो हम बताएंगे। लेकिन उससे पहले पूरा नंबर गेम समझ लो। एस सब शेल में कितना, सबसे इंपॉर्टेंट ये डायग्राम है, सबसे इंपॉर्टेंट। फर्स्ट शेल में कितनी सब शेल होती है, एक ही होती है। एस में कितने ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड शेल में एस और पी होती है, तो उसमें कितने ऑर्बिटल, 4 ऑर्बिटल, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। 18 में 9 ऑर्बिटल, तो थर्ड शेल में 9 ऑर्बिटल, 18 इलेक्ट्रॉन। फोर्थ शेल में 18 ऑर्बिटल, 32 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये हुआ आपका पूरा नंबर गेम। अब उसके बाद हम अगले वीडियो में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, ठीक है। गुड बाय।